بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فصدق وکن من قریب۔ حاضرین محفل، یہ حضور کا شجرہ نسب نامہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک 30واں پارٹ ہے، یعنی شجرہ نسب نامے کی 30ویں کڑی ہے۔ آج کا مفہوم، آج کا موقف یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر مصیبت کیسے نازل ہوئی۔ حاضرین جلسہ، سامعین حضرات، ڈیئر آڈینس، اس سے پیشتر گزشتہ ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے دیو سمود اڑنے والے گھوڑے پکڑ کر کے لایا۔ آپ ان گھوڑوں کی خوبصورتی دیکھ کر اس قدر متحیر ہوئے کہ اتنے مشغول ہوئے انہیں دیکھنے میں کہ عصر کی نماز بھی آپ کی قضا ہو گئی، ٹائم نکل جا چکا۔ تو اب ہم اس ویڈیو کے لیے یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو کہ دیو سمود تھا، جو اڑنے گھوڑے پکڑ کر کے لایا تھا، اس سے مطالبہ کیا کہ تو زمانے میں جاتا ہے، دنیا کی سیر و تفریح کرتا ہے، سب سے زیادہ دنیا میں کون سی چیز تیرے لیے بہتر لگی، کون سی چیز تیرے لیے سب سے زیادہ خوبصورت اور اچھی لگی، اس کا احوال بیان کر۔ دیو سمود حضرت سلیمان علیہ السلام سے برجستہ کہتا ہے کہ اے بادشاہ وقت، اے اللہ کے نبی، ایک مرتبہ میں 7 سمندر پار جزیرہ میں پہنچا۔ وہاں پر میں نے دیکھا کہ بہت ہی بڑا میدان ہے جزیرے میں۔ ایک قلعہ نما دیوار نظر آئی۔ جب میں اس دیوار کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ بہت وسیع میدان ہے اور اس میدان میں پبلک اکٹھا ہے، تمام پبلک اسمبلڈ ہے۔ میں نے وہاں کے لوگوں سے جا کر کے دریافت کیا، معلومات کیا کہ واٹ ہیپنڈ، کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، واٹ از ٹاک، کیا بات ہے۔ ایک شخص نے مجھے بتایا کہ یہاں کا بادشاہ انک بود اور اس کی صاحبزادی یہ تخت پر بیٹھے ہیں۔ یہ بادشاہ جو ہے اپنی بیٹی کی پرستش پوجا کرواتا ہے، کیونکہ اس کی بیٹی، اس کی دختر اتنی زیادہ بیوٹیفل، اتنی زیادہ حسین و جمیل، اتنی پری روح ماہرو ملکہ ہے کہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر کے تمام یہاں کی پبلک جو ہے اس کے لیے دیوی مانتی ہے اور اس کی پوجا کرتی ہے۔ بادشاہ انک بود جو ہے اس کا والد، کیونکہ دختر بادشاہ کی لڑکی تھی، ڈاٹر آف کنگ، تو بادشاہ خود ہی اپنی بیٹی کی پوجا کرواتا تھا پبلک سے۔ سمود دیو جب وہاں جا کر پہنچتا ہے اور دور سے اس لڑکی کے حسن و جمال کے لیے دیکھتا ہے، تعجب کرتا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بیان کرتا ہے کہ حضور، میں نے سب سے زیادہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ بیوٹیفل، سب سے زیادہ حسین و جمیل صورت کی ایک لڑکی جو ہے بادشاہ انک بود کی جو ہے، جو کہ پرستش کراتا ہے، وہ دیکھی ہے۔
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने वजीर आसिफ देव के लिए हुक्म देते हैं कि जितनी जल्दी हो एक लश्कर जर्रार तैयार किया जाए, क्योंकि 7 समंदर पार का मसला है। जो इंसानों की फौज है वो नहीं जा सकती, दे कैन नॉट गो समंदर के पार। इसके लिए परी और जिन और देव की एक बहुत बड़ा लश्कर जर्रार तैयार करो। चुनाचे वजीर आसिफ जो आपका जो था देव, एक बहुत ही तबील एक लश्कर तैयार करता है। गरज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो इंसानों की फौज थी उसे छोड़ करके जिन परी देव की फौज लेकर के, क्योंकि वो उड़ सकते थे समंदर के पार, इंसान नहीं उड़ सकते थे, इसलिए इंसानों की फौज यहीं छोड़ दी और बाकी परी देव जिन्नों की फौज लेकर के हजरत एक जर्रार लश्कर लेकर के समंदर के पास जजीरे में जाते हैं। आपके तख्त पर वजीर उमरा बैठे हुए थे, तख्त आपका हवा में उड़ रहा है। जब जजीरे में तख्त पहुंचता है तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है बादशाह के लिए एक फरमान भेजते हैं कि ऐ बादशाह वक्त, तू अपनी बेटी की पूजा कराता है, जिसे देवी मानता है, ये सब रॉन्ग है, सब गलत है। अब तेरी भलाई यही है कि तू इस्लाम कबूल कर ले और ये बुत परस्ती छोड़। चुनाचे बादशाह जो है रहा अनकबूद अपनी बेटी से कंसल्ट करता है, अपनी बेटी से सलाह मशवरा करता है, उसकी कंसर्न चाहता है, ऐ बेटी क्या किया जाए, इन अबाउट इट, इसके बारे में क्या करना चाहिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ चुका है और वो ये कह रहे हैं या तो मुझसे जंग की जाए, अदरवाइज बुत परस्ती छोड़ के मुसलमान हो जाओ। बेटी कहती है, ऐ वालिद, आप बादशाह वक्त हैं, इतनी कवि, इतनी स्ट्रांग, इतनी ताकतवर आपकी फौज है, आप कैसे ऐसे इस तरीका से एकदम से मुसलमान हो जाएंगे और जंग के लिए छोड़ देंगे। आप जंग कीजिएगा, एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू शुडंट वरी इन अबाउट इट। ऐ वालिद बुजुर्गवार, जब तक मैं यहाँ हूँ आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं देवी हूँ, आपकी हार नहीं होगी, आपकी डिफीट नहीं हो सकती। आप सुलेमान से जंग कीजिए। बादशाह अपनी फौज लेकर के अकेले के बाहर आ जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज से जंग होती है। देव की फौज जो थी पहले पहुंचती है लड़ने के लिए। देव की फौज जो थी बादशाह अनकूद की फौज से हार जाती है। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम परियों की फौज के लिए भेजते हैं। बड़ी मार का आराय की जंग होती है, कुश्तों के पुश्ते लग जाते हैं, बड़ी डेंजर टाइप की लड़ाई होती है। परियों की फौज भी हार जाती है, डिफीट मिलती है परियों की फौज के लिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फिर जिन्नों की फौज के लिए हुक्म देते हैं कि जिन जाए। जिन्नों की फौज जाती है। जिन्नों की फौज के लिए भी बादशाह अनकबूत की फौज से मुंह की खानी पड़ती है, डिफीट होती है, हार जाते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम हुक्म देते हैं तीनों फौजें मिलकर के, परी जिन देव तीनों फौजें मिलकर मगलूबा जंग छेड़ दें। चुनाचे मगलूबा जंग जब शुरू होती है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज के लिए फतहमंदी हासिल होती है। बादशाह की फौज डिफीट पाती है, हारने लगती है। बादशाह अनकबूत जो था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर आ जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और बादशाह अनकबूत की जंग होती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा के लिए हुक्म देते हैं कि एक मुट्ठी खाक हवा पर फेंक दी जाए। चुनाचे जब एक मुट्ठी खाक जब हवा फेंकती है, हवा पर जाती है, तो उसकी दोनों आंखों में मिट्टी भर जाती है, उसे कुछ नजर नहीं आता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है बादशाह अनकबूत का सर कलम कर लेते हैं। बादशाह अनकबूत का कत्ल होते ही तमाम फौज भाग खड़ी होती है। बादशाह की बेटी परीरू महारू जो थी, हसीनो जमील थी, गिरफ्तार हो जाती है, अरेस्ट कर ली जाती है और उसके साथ में 400 दासियां थी, 400 बांदियां थी, वो भी गिरफ्तार कर ली जाती हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह अनकबूत के शहर के लिए बर्बाद कर देते हैं, ताराज करके, मिसमार करके
वतन के लिए रिटर्न होते हैं। बादशाहजादी साथ में थी, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि आप इस्लाम कबूल कीजिए और मेरे साथ शादी कीजिए। बादशाह की दुख्तर जो थी इनकार करती है और कहती है मेरी एक शर्त है, मेरी एक कंडीशन है, मैं इस्लाम तब को कबूल करूंगी और तब आपसे शादी करूंगी। मेरी एक शर्त है कि मैं अपने बाप के पुतले के लिए, अपने बाप का एक पुतला बना करके मैं उसकी पूजा करूंगी, परस्तिश करूंगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुख्तर के हसीन जमील सूरत, ब्यूटीफुल, उसकी इनोसेंट, उसकी खूबसूरत को देख करके उस पर आशिक व फरेब्ता हो गए। उसकी शरायत, उसकी कंडीशन के लिए आप एग्री हो जाते, मान जाते हैं, ठीक है तू अपने वालिद का पुतला बना ले और बुत परस्ती कर, उसकी पूजा कर। आई डोंट ऑब्जेक्शन, मुझे कोई ऐतराज नहीं। चुनाचे बादशाह की बेटी अपने वालिद का पुतला बनाती है और खुफिया तरीके से उसकी पूजा करने लगती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उससे निकाह फरमा लेते हैं। गरज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठे हुए हुकूमत चला रहे थे। आपका ये मामूल था कि जब आप बैतुल खला या इस्तंजा के लिए जाते थे तो हाथ में जो रिंग पहने थे, अंगूठी पहने थे, वो एक परी आपने मुंतखब कर रखी थी, उसे आप उतार करके दे जाते। आफ्टर दैट बाद में जब बैतुल खला या इस्तंजे से वापस होते तो परी से अंगूठी लेके पहन करके तख्त पर बैठ जाया करते। चुनाचे इस तरगीब के लिए इब्लीस देख रहा था। उसने आइडिया लगाया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी जो है परी से ले ली जाए, किसी बहाने, किसी हीले से। जरा सुलेमान अलैहिस्सलाम जब बैतुल खला जाते हैं और अपनी अंगूठी उस परी को लेकर दे करके जाते हैं, शैतान इब्लीस जो था वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का भेष बदलकर सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह चेहरा बना करके आता है और परी से अंगूठी ले लेता है और अंगूठी पहन करके तख्त पर बैठ जाता है। सब उसके जेर फरमा हो गए, सभी लोग उसका हुक्म मानने लगे। गरज जब सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल खला से रिटर्न हुए, वापस आए, तो परी इसका अंगूठी दो। परी कहती है अंगूठी तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ले गए। उन्होंने कहा तू झूठ बोलती है, उनके हकीकतन रियलिटी यही है, सुलेमान अलैहिस्सलाम को मैंने अंगूठी दी है, तख्त पर बैठे हुए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम आते हैं और अपनी शक्ल का बैठा हुआ शैतान को देखते हैं तो ताज्जुब करते हैं। वजीर आसिफ से कहते हैं कि मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम हूँ, ये नकली है। वजीर आसिफ आपकी कोई तवज्जो नहीं देता है, क्योंकि अंगूठी जिसके कब्जे में है, जिसकी अंगुली में अंगूठी है, उसकी बात का असर होगा, उसका हुक्म माना जाएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम सभी से कह रहे हैं मैं सुलेमान हूँ। लोग कहते हैं मजनू है, ये दीवाना घूम रहा है, लोग आपकी बात को सुन ही रहे नहीं रहे। आप शहर में जाते हैं और लोगों से फरियाद करते हैं मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम हूँ। लोग कहते हैं देखिए मजनू ये दीवाना कैसा घूम रहा है, कैसा पागल है, कहता मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम हूँ। अरे सुलेमान अलैहिस्सलाम तो तख्त पर बैठ कर हुकूमत कर रहे हैं। कोई हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात को सुनने को एग्री नहीं है, कोई राजी नहीं होता। आखिर आप शहर छोड़ करके, शहर से बाहर एक झोपड़ी पड़ी थी एक बुजुर्ग की, वहां जाकर के आप वहां पहुंच जाते हैं और उस बुजुर्ग से कहते हैं वेरी हंग्री, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा भूख महसूस हो रही है, आप मुझे कुछ खाने को दें। बूढ़ा जो कहता है ठीक है मैं आपके लिए उजरत खाने के लिए तब दूंगा कि मैं मछली पकड़ रहा हूँ, मेरी मछली आप पकड़वाएं, और आप मेरी मछलियां पकड़वाया करेंगे तो मैं 2 मछली आपके लिए दूंगा। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी बुजुर्ग की मछलियां पकड़वाते हैं दरिया से। दिन भर की उजरत जो बुजुर्ग जो है 2 मछलियां देता है। एक मछली को आप बेचकर फरोख्त करके बाजार में जो है रोटियां लेते हैं, दूसरी मछली के लिए आप साफ पेट चाक करके और उसका तल के और फिर अपनी भूख की शिद्दत के लिए मिटाते हैं। यही मामूल, यही बतीरा आपका चलता रहा। आप मछली पकड़ के देते थे,
वो बुजुर्ग आपके लिए उसके एवज में उसकी उजरत में 2 मछली देते थे। एक मछली आप मार्केट में बेच करके और एक मछली तल के खा लिया करते थे। अगर 40 दिन का वक्फा हो जाता है, वजीर आसिफ देव जो था उसे कुछ डाउट होता है कि सुलेमान नहीं है, कोई और शख्स है। उनका भेष बदल करके तख्त पर बैठा हुआ है। आसिफ देव जो वजीर था, ही वॉज वेरी क्लेवर, बहुत ही शातिर, बहुत ही चालाक था। ही वॉज वेरी माइंडेड। वो परी के पास पहुंचता है, जो परी अंगूठी देती थी, जिसे सुलेमान अलैहिस्सलाम अंगूठी उतार करके दे जाते थे बैतुल खला इस्तंजा जाने के लिए। वजीर आसिफ देव उसके पास पहुंचता है और कहता है, सुलेमान अलैहिस्सलाम तुझे अंगूठी दे रहे हैं बैतुल खला जाने से पहले। तो वो परी कहती नहीं, आज 40 रोज हो गए, ये जो बैतुल खला ये इस्तंजा जाते हैं तो अंगूठी उतार कर नहीं जाते, अंगूठी पहन करके जाते हैं बैतुल खला ये इस्तंजा। वजीर आसिफ के लिए कुछ डाउट होता है, कुछ शक में कन्वर्टेड हो जाता है। शक और ज्यादा गहराता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हारम में जो बीबियां थीं उनके पास ये वजीर आसिफ पहुंचता है और बीबियों से दरियाफ्त करता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम आजकल नाउ ए डेज आजकल महलों में आ रहे हैं। तमाम बीबियां कहती हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम 40 दिन से हरम में कोई आराम करने के लिए नहीं आ रहे हैं। गरज आसिफ देव के लिए और भी ज्यादा पक्का मुतमईन हो जाता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं है, उनके भेष में उनके रूप मसनूई सुलेमान बनकर के कोई बैठा है बहरूपिया। गरज आसिफ नाम का जो देव था उसने जो थी ज़बूर की एक एक कॉपी हर जो तख्त पर बैठा था उसके लिए दी, और जो सुलेमान बनकर बैठा था उसको भी दी थी कि इस ज़बूर का स्टडी ज़बूर का मुताला कीजिए। ज़बूर को देखते ही इबलीस जो था तख्त से भाग खड़ा होता है और भागते भागते अंगूठी जो थी वो एक दरिया में फेंक जाता है। 3 दिन तक तख्त खाली पड़ा रहता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वही मामूल था, वही हैबिट थी। हस्ब मामूल आप दरिया में मछली पकड़ने के लिए जाते, जब मछली पकड़ करके लाए तो उस ज़ईफ ने, उस बड़े बूढ़े ने आपके लिए 2 मछली आपको उजरत दी। आपने एक मछली बाजार में जाके फरोख्त की और एक मछली का पेट चाक करके तलने के लिए तैयार हुए तो देखा कि मछली के पेट में अंगूठी वही निकली सुलेमान अलैहिस्सलाम की। आप उस अंगूठी को पहनकर खुदावंद कुद्दूस का शुक्राना अदा करते हैं, इल्तिजा फरमाते हैं, मुनाजात करते हैं, या वादहुल्ला शरीफ तेरी बहुत बड़ी शान और जात है। मुनाजात करते हैं आप, ताबद या रब अज़तु मन लुत्फ़ है दारम उम्मीद, अज़तु गर उम्मीद बर्रम अज़ कुजा दारम उम्मीद। हम फकीरम हम गरीबम बेकसो बीमार जार, एक कदा शरबते दारुल शफा दारम उम्मीद। ना उम्मीदम अज़ खुद अज़ जुमले खल्क़े जहां, अज़ हमा तो उम्मीदम रहमते दारम उम्मीद। हम बदम बद गुफ्तवम बदमानदा अम बद करदाम, बावजूदे ई खताहा मनता दारम उम्मीद। काबतुल उशाक बशुदी मकाम, हर के नाकिस आमदी जा शुद्ध तमाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बारगाह रब्बुल इज्जत में जब ये मुनाजात पढ़ते हैं, आपकी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। चूंकि उस मकबूल वक्त में दुआ मांगी गई थी, इसलिए असर का तीर पहले ही निशाने आजाद पर पहुंच चुका था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ ग्रांट होती है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ मकबूल होती है। बारगाह रब्बुल इज्जत में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए वो अंगूठी मिल जाती है मछली के पेट से। आप उस अंगूठी को पहन करके शहर में आते हैं। आपका चेहरा देखते ही तमाम पब्लिक, तमाम हाकिम, तमाम वजीरों उमरा जो है इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आपका, और आप तख्त पर जा बैठते हैं। तमाम हुकूमत आपके ज़ेरे निगरान है, तमाम हाकिम वजीर आपका कहा मान रहे हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम
महलों में जाते हैं और जो बादशाह को बुद्ध की जो दुख्तर थी जिससे निकाह फरमाया था, जो बुत परस्ती करती थी, 40 दिन हो गए आपके महलों में बुत परस्ती होते हुए, उसी का अजाब अल्लाह ताला ने आपके लिए दिखाया कि आपको इम्तहान की कसौटी पर परखा और आपको ये मंजर देखने के लिए मिला। चुनाचे आप उस लड़की के लिए बुलाते हैं और उसके लिए कत्ल कर देते हैं और उसके साथ में जो 40 दासियां जो बांदियां थी उन्हें भी तय कर देते हैं। गरज इसके बाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है अपनी बड़ी आन वान शान के साथ हुकूमत चला रहे हैं। आपकी मलिका बिल्कीस जो है आपके कदम ब कदम शाना बशाना आपकी हुकूमत चलाने में शरीक है। और जब वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जब एहसास हुआ तो आपने खुदावंद कुद्दूस से फरमाया इट वाज बाय मिस्टेक, अल्लाह तबारक व तआला मुझसे गलती हुई, ऐसा गलती से हो गया था, एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर, अपोलोजीज, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं हकीकतन गलती पर था, मैं रियलिटी में ऑफ कोर्स इंडीड मेरी वीकनेस थी, मेरी कमजोर थी, मैं भूल गया था। एक रवायत में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बार फरमाया कि मेरे 300 बीबियां हैं। मलका बिल्किस को लगा करके अब 301 बीबी हो चुकी हैं और 400 हरम है। मैं सबसे मुबाशरत जुस्त हम बिस्तरी करूंगा और उनसे जो बीबी जो एक एक बेटा पैदा होगा तो मेरे इतने बेटे पैदा हो जाएंगे कि मैं अल्लाह की राह में जिहाद करूंगा। तो आपने ये कहते हुए इंशाअल्लाह नहीं फरमाया। इसके एवज में खुदावंद कुद्दूस ने आपके लिए इम्तहान की कसौटी पर परखा। आपके ये लफ्ज जो थे अल्लाह ताला की बारगाह में पकड़े गए, आपकी पकड़ हुई, तो आपके लिए इतना मुसीबत, इतनी परेशानी, इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा 40 रोज तक। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मलका बिल्किस के साथ हुकूमत चला रहे हैं। यहाँ से फारिग होने के बाद में जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो बैतुल मुक़द्दिस की तामीर का काम शुरू किया था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक नक्शा बना के आसिफ देव के लिए दे दिया था कि इस तरीके से बैतुल मुक़द्दिस की तामीर होना है। चुनाचे तमाम जिन परी देव बैतुल मुक़द्दिस की तामीर करते रहे। आपकी उम्र बाज़ रवायत में आया है 93 साल हुई, बाज़ की उसमें आया है 63 साल हुई है, बाज़ रवायत में आया है कि आपकी उम्र 750 साल हुई है, लेकिन 100 साल की उम्र पर ज्यादा इत्तफाक है। 93 साल की आपकी उम्र हुई है और जब आपने देख लिया कि अनकरीब है, अब खुदावंद कुद्दूस से मिलने का वक्त आ गया है, तो आप बैतुल मुक़द्दिस में एक शीशे के संदूकचे में आप खड़े हो गए, छड़ी लेकर, अपनी लाठी लेकर के, और उसके सहारे आप खड़े रहे। देव जिन परी जो थे बैतुल मुक़द्दिस की तामीर करते रहे। जिस हिसाब से आपने नक्शा बनवाया था उस नक्शे के हिसाब से बैतुल मुक़द्दिस बनता रहा। चुनाचे 100 साल के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज होने के 100 साल के बाद जब आपकी ये लाठी जो थी जिसे टेके खड़े थे, उसे जब दीमक ने चाट लिया, तब वो लाठी गिरी है तो फिर आपका जिस्म अतर भी जमीन पर गिर पड़ा। इसे देखते ही देव जिन परी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के विसाल के फरमाने के बाद में तमाम सब के सब भाग खड़े हुए, सब आजाद हो गए। हाजिरी मजलिस, ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मजीद की सूरह निसा, सूरह सबा, सूरह अनम, सूरह अंबिया, सूरह स्वाद में खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मजीद में बड़े इख्तिसार, बड़ी डिटेल, बड़ी तफसील के साथ में बयान फरमाया है। हाजिरी मजलिस, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा ये 30वां पार्ट है। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम हजरत जुल्कुफ्ल अलैहिस्सलाम का किस्सा और असहाबे कैफ का किस्सा बयान करेंगे इंशाअल्लाह।
इस वीडियो के लिए अगर आपके लिए पसंद आई हो तो बस मैं तो वही बार बार कहूंगा, आई विल से अगेन एंड अगेन, मैं बार बार आपसे कहूंगा इस वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आई हैव टोल्ड टू यू, मैं आपसे कह चुका हूं कि हमारे अहबाब के पास इतनी फुर्सत नहीं जो कि मजहबी किताबों का मुताला कर सके। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए हकीर सरापा पुर तफसीर में ये शेर नसबनामा, ये तारीख इस्लाम का निचोड़, ये तारीख इस्लाम का एक जुज जो बयान कर रहा हूँ, इसलिए कि इसकी मालूमात हर खास व आम तक बखूबी हासिल हो सके। बड़ी इजी लैंग्वेज, बड़ी सरल भाषा में, बड़ी आसान जुबान में मैं आपके लिए, आपके सामने ये शजरा नसब, ये तारीख इस्लाम का जुज बयान कर रहा हूँ, जिससे हर खास व आम की बखूबी समझ में आ सके। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपनी बात को इख्तिताम करता हूँ और वही कहता हूँ, बाय, सी यू, वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।